Hello, everyone. Welcome to the Success Playbook by Expetrons and Shine. Let me ask you something. Have you ever seen someone say, I run a corporate gifting business? Almost never. So, I want to understand how is this kind of going to play out. And today we have a very amazing guest with us. We have Atish with us from Bharat Gifting. Atish, how are you doing today? Thank you so much, Jatin. I'm perfectly all right, and I'm super excited to be on this success playbook with you, Jatin, to share my story about Bharat Gifting, and let's see how it goes. So let's just start from the beginning. From the outside, gifting looks simple, and from the inside, I'm sure it is quite different. So if you can, Atish, if you can highlight how does it look like from the inside? See, this gifting industry, as the name suggests, gifting, you have a lot of things to work upon apart from your own capabilities, your own infrastructure. There is one thing which is called as vendor management. It is very, very crucial and important into gifting because there are a lot of things which are vendor dependent directly. So Right. आपका नेटवर्क कितना स्ट्रांग है, कितना पावरफुल है, उससे बहुत कुछ डिपेंड करता है. दूसरा, कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में क्या होता है कि देर आर एन नंबर ऑफ आइटम्स, देर आर एन नंबर ऑफ वेराइटीज एंड एवरी प्रोडक्ट हैव डिफरेंट type of branding to be chosen. It is very, very inconsistent all the time. So you have to be on your toes to, as soon as you receive the order or the requirement, you have to think with, with lightning fast speed, and you have to act in executing even faster than that. Again, one of the key aspect, this particular industry, तो ये बहुत जब सामने पैकेजिंग होकर के गिफ्ट पहुंचता है तो बहुत अच्छा लगता है, बट it is not that simple, or rather I would say it is not that organized or not structured. Wow. Wow. No, amazing. Good to know, I think, and I'm sure, I mean, you have been operating in the space for really the longest. So I'm sure there's a lot of improvement and structure and less chaos which you would have brought into your system. So really good to know about this. Before we, of course, get deeper into it, can you help me understand your scale today and how big is Bharat Gifting already? Okay, so the biggest achievement that we have earned is the experience that we have gained last 16 years of consistent services that we are providing to our clientele, our customers. You will be happy to know that we have, in last 16 years, we have served to over 10,000 plus corporate buyers, bulk buyers, और वो सिर्फ एक लोकेशन से नहीं थे. We have served to multiple states in the country, and even we have exported also. Uh, Right. from last probably around 5 years, we are adding one new customer on daily basis, and we are developing at least one new product on daily basis. तो आप देखिए कितना फास्ट ट्रांजिशन हो रहा है, कितना फास्ट हमें सोचना पड़ता है, कितना फास्ट Wow. एग्जीक्यूट करना पड़ता Wow. है. हमारे साथ वी हैव फ्यू मोर प्लस पॉइंट लाइक आवर रिपीट बिजनेस रेशियो, आवर रिपीट कस्टमर रेशियो इज वेरी, वेरी गुड. वी हैव अबाउट 200 plus active customers which are with us, who are helping us generate repeat business year on year for us. Wow. Apart from that, we have a lot of success stories to be shared, that we are one organization, we are one company who has delivered more than 60,000 customized laptop bags to a company in less than 90 days. 0 to Wow. 60,000 in less than 90 days. This is one of the real big time achievement. We have been Wow. working with a lot of sports companies. We have been working with a lot of franchise companies who are into sports, and we are preparing, highly customized and precious mementos gifts for them. We Wow. have been fortunate enough that few of our mementos have been presented to the top politicians, top film stars of the country. Uh, Wow. these things also we have achieved in past few years. So yes, Amazing. yes, I would say that the journey so far has been amazing, and we are hoping that it will be even more better going forward. Wow, wow. Amazing, amazing. So I think अगर किसी फिल्म स्टार के घर पे या किसी स्पोर्ट्स स्टार के घर पे अगर आपकी ट्रॉफी मिली तो we should not be surprised. Uh, so I think I think this is really excellent feat. I think amazing thing achieved by Bharat Gifting, and of course एक होता है being veteran in the space और एक होता है actually establishing your credibility with everyone in the space. Like corporates are very selective, very choosy, and you being able to kind of establish your name in the space is a really big achievement. So really good to know about what Bharat Gifting has been able to achieve over the years. आतिश थोड़ा और पहले जाते हुए कि what did you think about when you got into this industry? क्योंकि
क्योंकि गिफ्टिंग इज नॉट समथिंग कि कोई करियर स्टार्ट करता है और सोचता है कि मैं गिफ्टिंग में जाऊंगा, मतलब कोई बोलता है मैं ये करूंगा, कोई बोलता है मैं वो करूंगा, कोई बोलता है मैं जॉब करूंगा या बिजनेस भी करूंगा तो मैं इस टाइप का बिजनेस करूंगा. सो हाउ डिड यू काइंड ऑफ गेट इनटू दिस? During my education days, I was doing MBA from Mumbai. During those 2 years, I found my interest into organizing things Okay. better. अरे वाह. One of the industry which was related to this was event management. Okay. Okay. And somehow I got to come to Jaipur for one of the training project from our institute. और वो करते करते I found this Jaipur place a wonderful city to grow, to live, and to expand business, into different horizons. Right. So event management is one field जो बिना कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के कभी हाँ. पूरा नहीं हो सकता है. फॉर व्हाटसोएवर इज द इवेंट, किसी भी स्केल हाँ. का इवेंट हो, यू नीड टू हैव सपोर्ट फ्रॉम सम ऑफ द अदर कॉर्पोरेट गिफ्टिंग एजेंसी फॉर मे बी गिविंग द गिव अवे सर्टिफिकेट्स, ट्रॉफीज, अवार्ड्स, आईडी कार्ड्स, रजिस्ट्रेशन किट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया कि बिना कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के इवेंट तो नहीं हो सकता. दिस इज समथिंग, दिस इज द रियल स्टोरी जो मुझे कॉर्पोरेट गिफ्टिंग की तरफ खींच के लेके आया. और आई एम हाईली सेटिस्फाइड दैट in 2009 I could choose that industry. Amazing, amazing. No, I think this is excellent. I think this is so interesting to know कि कैसे, how did you kind of you get into this, and of course something which will inspire a lot of people who are looking to kind of get into an industry like this. So if I understand right, companies need gifting regularly. Of course, it is required by larger organizations also, and it's also done in a very unstructured manner. And why do you think the industry hasn't evolved like other industries? ऐसा है कि there is a huge demand of corporate gifting, especially after 2020, 2021. Their gifting was majorly known for pharma industries, but this is not the case. Corporate gifting is one such field which is required by each and every one of them. So demand is very very high, but the supply is not the ideal as per the demand, because it is fragmented. There are a lot of local players available in different locations to fulfill these needs. So this demand and supply gap is something that is to be taken care of. Apart from this, as I mentioned that ये इंडस्ट्री में ऐसा है कि वेंडर पे बहुत कुछ डिपेंडेंट हो, तो इसका पूरा का इकोसिस्टम इज वेंडर चैनलाइज्ड. Since the requirement, since the demand are of different products at different times, different quantities, different clientele. So normally अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगाते हो तो उसमें एक मैन्युफैक्चरिंग लाइन आप लगा लेते हो और यू कीप प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स 365 days 24/7. बट यहाँ ऐसा नहीं होता. वंस द डिमांड इज जनरेटेड, यू स्टार्ट एक्टिंग, तभी आपके प्रोसेस डिफाइन करने पड़ते हैं. सो अभी तक बहुत ज्यादा स्टैंडर्डाइजेशन या बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक प्रोसेसेस नहीं है यहाँ पर. और इस तरह के कुछ रीजंस हैं, आई थिंक, जिसमें ये कहा जा सकता है कि दिस हैजंट बीन येट इवॉल्वड एज अ Interesting. नहीं, I think very interesting to know. And has something changed recently, because it feels like companies are taking gifting more seriously now. तो मतलब do you think कुछ बदला है इसमें? जतिन, मेरे ख्याल से दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड. ये सबके लिए जानना बहुत जरूरी है. सी, आई एम इनटू दिस बिजनेस सिंस 2009. 2009 से 2018-19 का जो पीरियड था वो बिल्कुल अलग था. 2020-21 के बाद जो कॉर्पोरेट गिफ्टिंग का पीरियड है वो बिल्कुल अलग है. स्पेशली ये जो भी पैंडेमिक सिचुएशन हमने फेस किया था, उसके बाद कॉर्पोरेट गिफ्टिंग फील्ड बहुत ही तेजी से उभर के आया है, जबरदस्त तरीके से. इफ आई जस्ट गिव माय एग्जांपल टू यू, we all know that pandemic में क्या situations था in the on the first wave, पर complete shutdown for 90 days, 3 महीने के लिए complete shutdown था. 80 days at zero, just zero. 180 दिन बचे हैं हमारे पास में. उस 180 दिन में हमने हमारे करियर का हाईएस्ट टर्नओवर अचीव किया. लास्ट 11 सालों का, मतलब उस वक्त 11 साल हो चुके थे हमें, 11 सालों का हाईएस्ट टर्नओवर अचीव किया हमने सिर्फ 180 दिन में. तो हमने समझने की कोशिश की कि ऐसा हुआ क्यों. तो पता चला कि पेंडेमिक के बाद में सिचुएशन गिफ्टिंग के प्रति बहुत ज्यादा अलग हो गई. लोग कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे थे, एक दूसरे से ज्यादा कनेक्ट कैसे हो सके, टच में कैसे आ सके, रिलेशनशिप कैसे बिल्ड कर सके, कैसे स्ट्रॉन्ग कर सके, उस पर बहुत ज्यादा फोकस था. और कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के जो भी आर्टिकल्स होते हैं वो सबसे इजी तरीका है ये सब चीजें अचीव कर पाने का. सो दिस वे वी फाउंड आउट कि कॉर्पोरेट गिफ्टिंग बहुत स्पीड से स्केल हो रहा है. एंड इफ यू गो एंड चेक द डेटा आल्सो, 2021 के बाद में कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में नए एंट्रेंट्स की आने की जो स्पीड है बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ गई है. देयर आर लॉट ऑफ न्यू एंट्रीज इनटू कॉर्पोरेट गिफ्टिंग.
there have been multiple companies, whether they are making footwear, whether they are making clothes, apparels, Wow. luggage, yeah, technology based electronic items. Each and every company from each and every industry have their separate department of Wow. corporate gifting, and they are entering into this world of called as corporate gifting, क्योंकि उनको भी इस B2B गिफ्टिंग, रिलेशनशिप बेस्ड गिफ्टिंग का जो पावर है हाँ. उनको भी रियलाइज मिलेगा. तो ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट और बहुत बड़ा Wow. चेंज हमने देखने को मिला. अर्लियर गिफ्टिंग जो हुआ करता था वो मार्केटिंग सेल्स डिपार्टमेंट वाले इन हाँ. ऑर्गेनाइजेशन दे यूज्ड टू डू इट. But nowadays, every department, whether they are admin, whether they are HR, every department require corporate gifting articles on some हाँ. or the other occasions. Also, earlier जो बजटिंग हुआ करती थी ऑर्गेनाइजेशंस की, हाँ. ईयरली बजट जो बनाते हैं, वो सेल्स और मार्केटिंग का बजट होता था, उसमें से कोई एक छोटा सा कोना कॉर्पोरेट गिफ्टिंग को दे देते थे. लेकिन अब ऐसा नहीं है. Corporate gifting के Wow. separate budget, which is good for us Right. being into this industry. Also, people are more planned. जैसे if I give you example of companies who are into financial sector like NBFCs या banking sector, every every quarter end they need some recognition gifts. For Right. example, trophies, awards, certificates, Right. medals, इस तरह की चीजें हैं. क्योंकि हर क्वार्टर खत्म होने के बाद में उनके टारगेट्स का रिव्यू होता है. जो टारगेट अचीव करते हैं उनको दे Right. फेलिसिटेट देम, ताकि उनको Right. मोटिवेट किया जा सके और आगे आने वाले समय में उनको और अच्छा बेटर Right. रिजल्ट अचीव किया जा सके. तो ये एक साइकिल बनने लगा, ग्रेजुअली ये साइकिल बनने लगा, और वो साइकिल से रिपीट बिजनेस भी आने लगा. तो इस तरीके से बहुत सारे चेंजेस वी हैव Wow. सीन इनटू दिस इंडस्ट्री. तो मैं बोलते ही जाऊंगा क्योंकि इतने चेंजेस इसमें हुए हैं. नहीं, very interesting. I think the conversation we are having just shows the depth with which you are operating in the industry and the experience you've got, and glad I think आपने वो जो कोविड का वेव निकाला, that kind of, वो कहते हैं ना, हर every chaos comes, there's a lot of opportunity which comes. I think it was the right moment for your company to evolve and kind of do the highest revenue ever, and I'm sure ऐसे और moments आएंगे for you to kind of see better revenue than last year. So of course the industry is growing at a certain rate, corporate is inclined more, and it is of course going in the right direction. So I'm glad that happened with Bharat Gifting. I mean, first perception हमेशा यही रहता है कि corporate in general gifting is a very seasonal thing, and जैसे दिवाली में, न्यू ईयर में, उस टाइम पे ये ज्यादा होता है. तो do you think that is actually true, and or is it like demand is different, like it is not just a very seasonal thing? Really believe into this. Gifting is not seasonal. Gifting हाँ. is around the year. All 365 days gifting is being done. होता क्या है कि गिफ्टिंग करने के ओकेजन और हाँ. सीजन अलग अलग होते हैं. सो यू नीड टू हैव गिफ्ट फॉर ऑल दी हाँ. सीजन्स एंड ऑल दी ओकेजन्स. फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था कि फाइनेंशियल सेक्टर की जो कंपनी है, हाँ. एनबीएफसीज एंड ऑल, एवरी क्वार्टर एंड दे नीड हम्म. रिकग्निशन हम्म. गिफ्ट्स, राइट? Like there are IT companies, they need, you know, twice in a year they need onboarding, Right. employee onboarding kits, जिसमें जो यहाँ नया employee join करता है, they give them an onboarding kit to start their journey to that organization. There are few companies, especially into insurance sector, mutual fund sector, वो क्या करते हैं every year, मतलब although बहुत सारी companies करती, but majorly these companies they gift yearly calendar and diaries, especially during the new year to all their clients and all their Interesting. channel networks. हाँ. इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि दिवाली इज द बेस्ट एंड द बिगेस्ट सीजन Right. फॉर कॉर्पोरेट गिफ्टिंग. मतलब पूरा साल एक तरफ और सिर्फ दिवाली के 1-2 महीने एक तरफ, इतना Right. बड़ा डिफरेंस होता है. बट दिवाली, दिस गिफ्टिंग इज नॉट ओनली सीजन नाउअडेज. Amazing, amazing. I think celebration को जो सबसे ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं वो I think आपकी इंडस्ट्री बस ऑफिस में ही बैठे रहो चालू रहता है काम. How often does one company typically comes back, and मतलब how has that ratio been for you with different companies? क्योंकि आप corporates के साथ तो काम कर ही रहे हो, but then there are also other B2B clients. तो मतलब कितना ऑफन वो लोग रिपीट ऑर्डर्स देते हैं? आफ्टर दिस 2021, 2020 हाँ. और 2020 हमने एक पैटर्न ऑब्जर्व करना शुरू किया कि जो ये कुछ कंपनीज हैं वो हमसे, you know, after every 3 months they ask us for some kind of certificate, trophies, awards. ठीक है, तो ये हर 3 महीने बाद होने लगा. तो हमें ये पैटर्न समझ में आया कि ये पैटर्न सिर्फ एक कंपनी का नहीं है, एक इंडस्ट्री का है. तो अगर आपको पूरे बैंकिंग सेक्टर को या एनबीएफसी को या इंश्योरेंस कंपनी को या म्यूचुअल फंड कंपनीज को टैप करना है, तो आप जैसे क्वार्टर एंड होने वाला होता है उस मंथ में उनके पास पहुंच जाओ कि साहब हमारे पास में नए गिफ्टिंग के नए ट्रॉफीज अवार्ड्स आ गए, एंड आई एम 200% श्योर यू विल गेट एन ऑर्डर. सो दिस वे रिपीट बिजनेस
repeat business is amazing, is Hmm. giving us amazing result Hmm. through that analysis. Similarly, हाँ IT companies, हाँ onboarding kits, हर 6 महीने में हाँ उनको onboarding kit लगते हैं. They do not हाँ stop. और वहां पर अट्रिशन रेशियो भी थोड़ा राइट हाई होता है, तो हर 6 महीने बाद उनको राइट चाहिए होता है कुछ ना कुछ. तो नॉर्मली 1 से 2 साल तक दे यूज टू हाँ टेक द सेम थिंग विच दे हाँ ऑर्डर्ड इनिशियली. तो हमें हर 1-2 साल तक उनको वही चीज हाँ सप्लाई करके रखना है, और उसके बाद उनको ट्रू नए ऑप्शन सजेस्ट ट्रू करने हैं. ट्रू फिर देयर आर लाइक कंपनीज लाइक यू नो समझिए अपैरल्स हाँ वाली जो कंपनीज हैं, वो क्या करते हैं, या जो इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने वाली कंपनी, इस तरह की जो हाँ इंडस्ट्री में काम करते हैं, वो अपने रिटेलर्स के लिए, अपने डीलर्स हाँ डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, या जो पेंट बनाने वाली हाँ कंपनी पेंटर्स के लिए कुछ ना कुछ उनके किट के अंदर गिफ्ट वाह रखते हैं. सो हमने वो पैटर्न भी समझा, एंड वी हाँ स्टार्टेड पिचिंग टू देम. So this way, repeat business is one of the हाँ great thing that we have achieved. और सबका रिपीट साइकिल हाँ जो है वो अलग हाँ अलग होता है. हाँ किसी का मार्च होगा, किसी का सितंबर होगा, हाँ किसी का जून होगा. सो ये आइडेंटिफाई करके एंड हाँ अकॉर्डिंगली यू कैन हाँ पिच. ये एक बहुत ही बेहतरीन एस्पेक्ट है इन कॉर्पोरेट गिफ्टिंग, टू मैनेज दिस रिपीट साइकिल, टू अंडरस्टैंड दिस रिपीट साइकिल. हाँ ऑल्सो we are not only working with direct corporates हाँ or direct end users. We have a lot of B2B partners who are who are associated with us. वाह Associated का मतलब they book orders हाँ from their clients, and they bring वाह those orders to us. We execute those orders on their behalf, and they give वाह delivery to those clients. ऐसे सब लोगों के साथ में हमने एक और ट्रिक का इस्तेमाल किया, विच हाँ इज रिलेशनशिप बिल्डिंग. आई पर्सनली बिलीव, मैं अपनी टीम हाँ को भी अक्सर ये बोलता हूँ कि टुडेज बिजनेस या टुडेज एरा इज ओनली एंड ओनली अबाउट रिलेशनशिप उसी बेस्ड बिजनेस. ऑल्सो द काइंड ऑफ बिजनेस दैट वी आर इनटू इज ऑल्सो नेटवर्क ड्रिवन बिजनेस. हाँ हमने हमारे नेटवर्क को भी और वाइडन करने का कोशिश किया, हमने हमारे नेटवर्क को भी बहुत वाह बढ़ाने का कोशिश किया. वी आर पार्ट ऑफ वेरियस नेटवर्क हम्म organizations wherein we are pitching our business हाँ directly and indirectly, हाँ and we are getting हाँ results. हाँ अमेजिंग अमेजिंग नहीं आई थिंक वेरी वेल पुट आई थिंक आतिश आई थिंक जबरदस्त है एंड आई एम श्योर एक्चुअली इट इज अबाउट रिलेशनशिप बिल्डिंग एक्चुअली आप जो अपने क्लाइंट्स को रिलेशनशिप बिल्डिंग करके गिफ्ट दे के आप जो मेंटेन रखते हो उस क्लाइंट को भी समझ में आता है कॉर्पोरेट को भी समझ में आता है कि नाउ दे कैन आल्सो मेंटेन देयर रिलेशनशिप विद देयर क्लाइंट्स बाय गिफ्टिंग देम समथिंग and that automatically creates a chain in their mind कि यार they can also order bulk for their channel partners for their distributors for their clients for whomsoever they are serving इंडस्ट्री के अंदर इतना डेप्थ में जाके समझना कि ओके यहाँ इस इंडस्ट्री में एट्रिशन ज्यादा है क्लाइंट रिलेशनशिप ज्यादा मैटर करता है तो यहाँ पे गिफ्टिंग ज्यादा होगी या यहाँ पे हर क्वार्टर में क्वार्टरली अवार्ड्स होते हैं और यहाँ पे दिए जाएंगे सो दीज आर रियली वंडरफुल इनसाइट्स जो ऑफ कोर्स आई एम श्योर आपके बिजनेस को रेट से ग्रो करवा रहा होगा तो आई एम रियली ग्लैड टू नो मोर अबाउट जिस डेप्थ के साथ आप इसमें काम कर रहे हैं एंड सो रियली गुड टू नो अबाउट दैट आतिश so where exactly does this break today like if demand exists what's stopping this from becoming a structured business because मतलब हमने सारी चीजें बात करी but like क्या क्या यहाँ पे अभी भी what is where is it breaking at हाँ So one thing is the हम्म execution process. Since the product is not the हम्म same all the time, the client is not the same all the time, the raw material या जो वेंडर से सामान आना है, that is also हम्म not the same all the time. तो किसी भी प्रोडक्ट को ऑर्डर आने के बाद में उसको फिनिश करके डिलीवर करने के हम्म का जो प्रोसेस है, द एग्जीक्यूशन प्रोसेस इज हम्म लिटिल हम्म कॉम्प्लेक्स, बिकॉज यू कैन ओनली थिंक व्हेन यू हैव द ऑर्डर हम्म ऑन इन योर हैंड. तब आपको पता चलेगा कि आज मुझे, फॉर एग्जांपल, आई विल जस्ट गिव एन एग्जांपल ऑफ मे बी अ पेन हम्म स्टैंड इफ यू हैव टू मेक हम्म फ्रॉम एमडीएफ. आज आपको ऑर्डर मिला है और ये पेन हम्म स्टैंड आपको बनाना है, देन हम्म यू विल फिगर आउट कि मेरे को अगर ये पेन स्टैंड को 100 पीस 200 पीस की डिलीवरी हम्म अगर 4 दिन में देना है, तो मुझे सोर्सिंग कैसे कैसे रॉ मटेरियल का कितना फास्ट हम्म सोर्सिंग करना पड़ेगा, डिजाइनिंग उसकी कस्टमाइज होती है, ऐसा भी नहीं कि सब कुछ सेम टू ट्रू सेम बन जाता है. सो ये सब कुछ डिसीजन बाद में लिया जाता है हम्म वंस यू हैव द ऑर्डर. और डिसीजन लेने और एक्ट के बीच का जो डिफरेंस है ना, टाइम का डिफरेंस, हम्म वो बहुत ही मिनिमल है. यू हैव टू हम्म एक्ट इमीडिएटली, यू हैव हम्म टू एग्जीक्यूट इमीडिएटली. ये जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, दिस इज समथिंग, ऐसा कह सकते हैं कि ये एक प्रॉब्लम एरिया है जिसका सोल्यूशन बहुत सारे हम्म लोग कर भी रहे हैं, एंड बहुत सारे लोग इसका सोल्यूशन हम्म फाइंड आउट करने में लगे हुए हैं. Also, this industry is vendor dependent industry because of various हम्म kinds of raw material, हम्म prints.
वगैरह वगैरह, अलग अलग के लिए अलग अलग चीज़ों राइट की रिक्वायरमेंट होती है। तो मल्टीपल राइट नेटवर्क होना बहुत जरूरी राइट है। में भी एट टाइम्स इट इज इशू, कैसे स्केलिंग में इशू हो सकता है कि, पर कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में क्या होता है कि देयर आर एन नंबर ऑफ आइटम्स, मतलब हम्म स्काई इज द लिमिट। आप समझो एक नीडल से लेके एक एरोप्लेन तक कुछ भी किसी को भी ब्रांड करके अगर गिफ्ट करना है तो दैट कम्स अंडर द राइट अम्ब्रेला ऑफ द कॉर्पोरेट गिफ्टिंग। सो किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को स्केल करते जाना, फॉर एग्जांपल इफ आई एम हाँ मेकिंग अ स्पीकर, तो मुझे पता है कि मुझे सिर्फ स्पीकर ही बनाना है, मैंने उसका डाई बना दिया, मोल्ड बना दिया, उसके अंदर रोज रॉ मटेरियल डाला जा रहा है, सामने मशीन में हाँ प्रोडक्शन निकलता जा रहा है, 1000 2000 हाँ 5000 रोज के निकल रहे हैं। हाँ पर यहाँ ऐसा नहीं होता है। कोई भी एक प्रोडक्ट बनाना है तो जितना आपकी रिक्वायरमेंट या तो उतना बनाओगे या उससे हाँ थोड़ा एक्स्ट्रा बना दोगे, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट का लाइफ भी उतना लंबा नहीं है। रोज नए इनोवेशन हो रहे हैं, रोज हाँ नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, रोज हाँ नई क्रिएटिविटी आ रही है। तो एक प्रोडक्ट बहुत लंबे टाइम तक चल सके हाँ ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो स्केलेबिलिटी टाइम्स इट इज एन इशू कि आप बनाओ तो कौन सा ऐसा प्रोडक्ट लगातार बना के रख सकते हो और वो हम्म कितने बना सकते हो, क्योंकि देयर आर एन से हमारे पास जो अभी है इन आर डिस्प्ले गैलरी वी हैव हाँ 12,500 प्लस एसकेयू। हाँ तो अगर 12,500 वाओ एसकेयू का अगर मुझे हाँ स्टॉक बिल्ड करना है, कितना रिसोर्स चाहिएगा, कितना हाँ स्पेस चाहिएगा, एंड आई एम नॉट श्योर उनमें से सारे आइटम सोल्ड हाँ आउट होंगे कि नहीं होंगे। सो ये हाँ भी एक इशू है। सेकंड एंड द लास्ट इज देयर इज हार्डली एनी सेंट्रलाइज्ड हाँ प्रोसेस और सिस्टम हाँ because of the complexity of the industry, because of the हम्म complexity of the processes, standard process या हम्म centralized system नहीं हम्म है अभी तक, जिससे कि इसको हैसल हम्म फ्री किया जा सके। हम्म नहीं, वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक आपने इसमें ऑफ कोर्स काफी टाइम स्पेंड किया है टू नो कि क्या पार्ट्स इसमें ऑफ कोर्स स्केल हो सकते हैं और क्या पार्ट इसमें ऑफ कोर्स इज वेंडर डिपेंडेंट, रिलेशनशिप बिल्डिंग डिपेंडेंट, एंड ऑफ कोर्स द द डिमांड ऑफ कोर्स ऑन द रिटेल साइड, मतलब बी टू सी साइड में भी डिमांड है और बी टू बी साइड में भी डिमांड है, एंड ऑफ कोर्स यू हैव फाउंड योर निश की बी टू बी में स्केलिंग है जो वो बहुत ज्यादा पॉसिबल है। एंड आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल हु आर लुकिंग टू काइंड ऑफ गेट इनटू दिस can look at it from that point of view ki of course also Bharat Gifting is coming up with its own partner model where people can become their partners and kind of use your experience of 16 years and kind of get into the space, and जो जिस speed से ये space grow हो रहा है they can essentially do that in their particular geography. So really good to know कि कितना potential है in terms of what anyone can do in the space. In terms of vision, Atish, how do you see, like what's the vision you have in mind with respect to भारत गिफ्टिंग, एंड कैसे हम इसको किस कहाँ तक इसको पहुंचाना चाहते हैं अगले 3 साल में, 5 साल में फॉर द तो कंपनी? हमने aim किया है। नाउ व्हाट आई वांट टू शेयर दिस एक्सपीरियंस, आई वांट हम्म टू शेयर दिस नॉलेज टू हम्म माय चैनल पार्टनर्स करके आगे बढ़ना चाहता हूँ, और इस 10,000 की जर्नी को 10 लाख 1 मिलियन वाह कस्टमर्स तक लेके जाना चाहता हूँ, which is quite difficult if I alone walk. But if I walk, with my channel partners हम्म alongside, it वाह becomes very, very clear. So I want to touch about nearly 1 million customer base in next 3 to 5 years, which can only be possible वाह by building a brilliant and excellent and वाह strong वाह channel network. नहीं, गुड टू नो आतिश, आई थिंक एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि डे वन में इफ आई बिकम योर पार्टनर, डे वन में आई गेट द लोगोज यू आर वर्किंग विद, आई नो मतलब जो जो आइडियोलॉजी पे आप काम करते हो, कैसे क्लोजर्स होते हैं, किस टाइप के क्लाइंट्स के पीछे जाते हैं, किस टाइप कहाँ पे रिपीट ऑर्डर्स मिलेंगे, कहाँ पे क्लोजर फास्टर होगा, किस टाइप के लोगों को मेरे को हायर करना है, कैसे मेरे को ये क्लोजर्स जल्दी करने हैं। सो आई गेट अ लॉट ऑफ दीज लर्निंग्स फ्रॉम योर 16 years ऑफ जर्नी, एंड आई स्टार्ट डायरेक्टली एट दैट। आप जो 0 से 100 पे पहुंच चुके हो, मैं सीधा 100 पे स्टार्ट करूंगा और 100 से जर्नी को 1000 पे ले जा पाऊंगा। सो दैट्स रियली ब्रिलियंट स्ट्रेटजी ओवरऑल। के दिमाग में व्हाट इज द आइडियल प्रोफाइल ऑफ अ पार्टनर, एंड किस टाइप का पार्टनर ये बिजनेस अच्छे से कर पाए? सबसे पहले तो मैं ऐसा पार्टनर ढूंढना चाहता हूँ जो इस बिलीफ में विश्वास रख सके, इस बात में विश्वास रख सके कि बिजनेस रिलेशनशिप बेस्ड हम्म किया जा सकता है। सो आई एम लुकिंग फॉर पार्टनर्स हु बिलीव इन दिस फिलॉसफी ऑफ हम्म रिलेशनशिप बिल्डिंग। सो दोज हु आर वेरी वेरी स्ट्रांग इन देयर रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल्स, देयर कम्युनिकेशन स्किल्स, देयर हाँ इंटरपर्सनल स्किल्स, ऐसे पार्टनर्स की मैं तलाश में हूँ। तो आप कम ही बिजनेस ओनर्स को ऐसा सुनोगे कहते हुए कि जो पार्टनर से ये नहीं बोल रहे हैं कि आप बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लेकर के आओ तो यू आर एलिजिबल। आई एम सेइंग दैट इफ यू आर स्ट्रांग एट योर रिलेशनशिप वाह बिल्डिंग स्किल्स, अगर आप नेटवर्क को पकड़ना, नेटवर्क को हाँ समझना जानते हो, सो देन दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म फॉर यू, दिस इज गोइंग टू बी राइट बिजनेस हाँ फॉर यू।
ये एक बहुत ही बेसिक requirement है which I am looking हाँ for my partner. Secondly, of course, since this is going to be a हाँ B2B model, so people who are intent towards this B2B model, or those who have this राइट B2B mindset, this is going to be an excellent opportunity for them. uh, और नहीं तो आई थिंक बाकी दिस मतलब हाँ सडनली नॉट हाँ नहीं आई थिंक दिस यस मेक्स सचिन कंप्लीट सेंस आई थिंक जिनको ये रिलेशनशिप बिल्डिंग और ये समझ में आता है बी टू बी पार्ट समझ में आता है दे ऑफ कोर्स द आइडियल profile, and as soon as you find people matching your frequency, matching the business ethos, automatically वो एक और एक 11 होता है तो it directly helps grow the business. So really good to know आतिश जो जिस टाइप के आप पार्टनर ढूंढ रहे हो, and I'm sure a lot of our listeners who are थिंकिंग कि इस इंडस्ट्री में भी बिजनेस बनाया जा सकता है और ग्रोथ करी जा सकती है, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम कहते हैं ना कि काफ़ी टाइम काफ़ी ज़्यादा जो नॉन फैंसी बिजनेसेस होते हैं वो सबसे ज़्यादा पैसा बना रहे होते हैं और बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्री होते हैं, एंड दिस गिफ्टिंग इंडस्ट्री साउंड्स रियली लाइक दैट एंड हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ पोटेंशियल. ऑफ कोर्स बहुत बहुत सीरियस बातें कर ली हमने पॉडकास्ट में. अब नाउ जंपिंग टू अ रैपिड फायर राउंड. I'll ask you quick questions. I'll of course expect crisp and short answers from you. So मैं quickly थोड़े let's begin the rapid fire round. What is the biggest myth about corporate gifting? गिफ्टिंग इज एन एक्सपेंडिचर एंड नॉट एन इन्वेस्टमेंट. दिस इज ग्रेट. Amazing, very very nicely put. One thing people underestimate in B2B. Power of relationship, Wow, networking, wow. and follow-ups. And relationship versus pricing, what wins? This is tricky. See, a relationship will work for Right, long-term business, and price definitely is the right, short-term. right. So great. And in terms of one industry with strong demand, what do you think is there? हाँ, कौन सी industry है जहाँ पे demand बहुत strong? एक तो नहीं मैं बता सकता क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं. फार्मा है, आईटी है, हाँ एनबीएफसी, कंज्यूमर हाँ. ड्यूरेबल, ऑटोमोबाइल, इन्हें बहुत अच्छी Wow, डिमांड रखती wow. And Bharat Gifting in one word. है. बिल्डिंग इंडियाज कॉर्पोरेट Wow, गिफ्टिंग wow, नेटवर्क. wow. Being amazing, Atish. I think really well put, and I'm really inspired by what you're building, and I'm sure मतलब इसका बहुत अच्छा compounding effect है. The number of people you're touching, of course, बहुत सारे employees को, बहुत सारे corporates को, बहुत सारे B2B clients को आप serve कर रहे हो, and there is a lot of compounding effect क्योंकि आपने चालू किया होगा 10 कॉर्पोरेट, फिर 100 कॉर्पोरेट, फिर 500 कॉर्पोरेट. ये दिस जस्ट कीप केप्ट कंपाउंडिंग बिकॉज देयर इज रिपीट ऑर्डर्स कमिंग एवरी टाइम. सो दिस इज रियली good growth which you have got in the industry, and I wish all the very best to Bharat Gifting for the growth coming in the future. This was really interesting. Because from the outside this doesn't even look like a organized industry, and but when you break down there is relationship, repeat, structure, and everything a real business needs. And Atish, thanks for sharing this. I'm sure a lot of our audience will learn a lot from this episode of the Success Playbook. Thanks for being present here. It was a wonderful it was wonderful talking to you and understanding about the industry. Thank you so much, Jatin, for inviting me for this podcast. I would like to thank from bottom of my heart, and looking forward to join hands with a lot of partners who are like-minded and really want to grow their own business. By joining hands with Amazing. Bharat Gifting. Amazing. Looking I'm forward. sure a lot of our listeners would be interested in kind of exploring this industry and kind of going deeper into it. Thanks, Atish, again for coming and sharing your experience. Yeah. Thank you.